ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ? ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ 2 ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਦੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ, ਹੈ ਨਾ। 5 ਫਾਰਮੂਲੇ ਟੋਟਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਇਹ 4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, 2 ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਤੇ 2 ਹੀ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਕਿਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਵਾਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਪਲਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਤੇ, ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ। ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਚ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਟੈਨ ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਜੇ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਸਾਈਨ ਇਨਵਰਸ, ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਐਕਸ ਪਲਸ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਵਾਈ, ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ। फार्मूला याद रखना, मैं बोल देना एक बारी। फार्मूला की है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, y नहीं है ना, y की जगह है ना अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस इधर y ते इधर अंडर की आई ना x, इधर x सिंपल ही ते अंडर जा गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर y है ते अंडर की आ गया 1 माइनस x स्क्वायर। ए प्लस दा ते विच की आ गया प्लस, अगर इथे माइनस हुंदा ते इथे की आई ना सी माइनस। ए दो फार्मूले हो गए, मैं दोनों को इकट्ठा ही लिख देना, प्लस है ते प्लस, ये माइनस है तो माइनस, बाकी यही रहना। उदा ही कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कहते एक होंगे कोस इनवर्स एक्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, अच्छा ये याद रखना, ये प्लस है तो माइनस होंगे, इतना चेंज होंगे कोस, माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, या इकट्ठा ही लिख दो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ਤੁਹਾਡੀ बुक च फार्मूले लिखे दे है ना, फार्मूले ਤੁਹਾਡੇ लिखे थे बुक च, जो ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। यार क्यों, जे प्लस है तो माइनस, इधर एक्स वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, जे माइनस होएगा तो की होएगा प्लस। देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਮ, ਇਹ एग्जांपल है कि देखना, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2। जबकि इधर की होना चाहिए साइन इनवर्स। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ tan ਇਨਵਰਸ ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 1 ਸਾइन 90 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 1, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਈ ਬਾਈ 2। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 1 ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਪਾਈ ਬਾਈ 2, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू पाई बाय 2, या पाई बाय 2 की जगह की लिख दो साइन इनवर्स 1। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਂਗਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 3/5 ਸਾइन ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਹੀ 4/5 ਕਿਤੇ ਪੜਿਆ है ना। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂਗਲ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ 1/2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਓ, ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਵੋ, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन, देखो बड़े सिंपल सम है, कोई 7-8 फार्मूले नहीं है, 7-8-10 फार्मूले गए,
इन्हों याद रखियो, इन्हों च ही आई जने सम। आ गई लैफ्ट हैंड साइड। हुण ये फार्मूला लाओ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। हुण यह ना सोचो भी सर राइट हैंड साइड के साइन इनवर्स होएगा, तो इधर की आ गया एंगल, एंगल मतलब साइन इनवर्स 1, एको ही मतलब है, ठीक है। उन्हें इनू ही सॉल्व करके सीधा एंगल लिखते हैं। करो सॉल्व इनू, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कितना आ गया, लगाओ फार्मूला, साइन इनवर्स अंदर कितना आ गया एक्स, एक्स कितना है 3/5, वाई 1 माइनस वाई स्केयर मतलब वाई आ गया 16/25, प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, ये प्लस ही प्लस वाई कितना है 4/5 अंडर 1 माइनस 9/25 आ गया। हुण तुसीं इहनूं सारिਆਂ ਨੂੰ सॉल्व करो, यह अपने आप तुहाडे कोल की बन जाना है 1। यह सारा सॉल्व करके की बन जाना है साइन इनवर्स 1, जिन्हों आपां की लिख देना π/2। अगे सिर्फ कैलकुलेशन ही है, करो कैलकुलेशन यह कितना आ गया साइन इनवर्स, मैं थोड़ी है ना 25 माइनस 16 है, मैं 2 स्टेप का 1 स्टेप कर लगा। 25 माइनस 16 कितना आ गया 9/25, ते 9/25 का अंडर कितना आ गया 3/5 प्लस 4/5 है 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 16, 16/25 कितना आ गया 4/5। इनू सॉल्व करो, बस अगे 2 स्टेप ही है, बस फार्मूला हो गया। आगे सिर्फ 1 स्टेप करना है। फार्मूला जरूर याद रखियो साइन इनवर्स दा, बुक च भी लिखे थे फार्मूले। कितना आ गया साइन इनवर्स 9/25 प्लस 16/25। सॉल्व करो, यह बन गया साइन इनवर्स, एलसीएम सेम है 25/25 कट के कितना आ गया 1, तो यह साडे को की बन गया साइन इनवर्स 1 आ गया, साइन इनवर्स 1। इनू ही उन्हें की लिखा होना है π/2, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। यह साडे को की आ गई राइट हैंड साइड। लग गए, सिर्फ कितना की है कुछ भी नहीं, सिर्फ फार्मूला लगाया है ना, फार्मूला लगाया। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई जो उन्हें लिखे था तब हो गया, फार्मूला लगाया, अगे कैलकुलेशन है नाले आंसर। एक आप कोज इनवर्स वाला करिए। कोज इनवर्स करने तो बाद मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसांगा, तुहाडा सम है मेरे को पुरानी बुक है, हो सकता नवी बुक दे विच थोड़ा अगे पिछे होए सम नंबर, जी मेरे को बुक है ये सम नंबर है जो हम कर लगे आप 24, सम नंबर 24 है जो हम कर लगे। सिर्फ उन्हें किया कि इतने की आ गया कोज इनवर्स 3/5 प्लस कोज इनवर्स 4/5। पूरी स्टेटमेंट की है, प्रूव दैट 24 सम है, प्रूव दैट कोज इनवर्स 3/5 प्लस कोज इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू π/2। कोज इनवर्स 3/5 प्लस कोज इनवर्स 4/, उदा ही आ गया, वो साइन इनवर्स ही, ये की आ गया कोज इनवर्स। जे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला, जो टैन इनवर्स है दोनों टैन इनवर्स है तो दोनों टैन इनवर्स वाले फार्मूला एक्स प्लस वाई वाला, जो दोनों कोज इनवर्स है तो कोज इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स वाई वाला फार्मूला है ना। ये चीज़ें याद रखना। हुण ये फिर वही गल आप कोज इनवर्स का फार्मूला लगाइए तो साडे को राइट हैंड साइड की बचता है कोज इनवर्स। हुण तुसीं देखना है कोज 90 कितना होंदा है, कोज 90 कितना होंदा है 0, ਇਹਦਾ मतलब कोज इनवर्स 0 प्रूफ करना है, या ए प्रूफ कर दो या कोज इनवर्स 0। ए ना करियो किते हुण कोज इनवर्स आप की प्रूफ करना है 0, ए ना करियो किते कोज इनवर्स ओ लिख दियो 1। ए देखना ना कोज π/2 वो साइन ही, कि साइन π/2 कितना होंदा 1, ਇਹਦਾ मतलब साइन इनवर्स 1। जिन्होंने स्टार्टिंग के पढ़िया ही जूम क्लासिस वो आप बड़े आराम ना किया ही, 2 दिन ही लगाए ही π/2 प्रूव कर लो या कोज इनवर्स 0।
हूँ लगाओ इतने फार्मूला, फिर लैफ्ट हैंड साइड लवो। लैफ्ट हैंड साइड साढ़े को की है कोज इनवर्स 3/5 प्लस कोज इनवर्स 4/5। हूँ ये ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगाना है, हूँ ये ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगाना है, कोज इनवर्स वाला, हाँ कोज इनवर्स वाला, प्लस है तो प्लस वाला लगाओ, तो जो माइनस है तो माइनस वाला। दूजी गल याद रखना कोज इनवर्स च उल्ट होंदा है, जे प्लस है तो इधर माइनस आ जाता है, जो माइनस है तो इधर प्लस। लगाओ फार्मूला, जो लिखना है तो बेशक तुम इधर ब्रैकेट च पा के लिख भी दो, मैं सीधा लगा लगा। कोज इनवर्स एक्स कितना आ गया 3/5 तो वाई कितना आ गया 4/5। देखना एक्स इंटू वाई, एक्स वाई है प्लस है, प्लस है तो की आना है माइनस, तो जो माइनस होएगा तो की आना है प्लस, बाकी सेम ही रहना। फिर की आ गया इतने माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 9/25 वाई स्क्वेयर 1 माइनस वाई कितना है 4/5 स्क्वेयर करता ना, है ना। बस अगे कुछ नहीं है जी, कैलकुलेशन सॉल्व करो आंसर आ गया। फिर देखो की बन गया कोज इनवर्स 12/25, एनो भी करो सॉल्व, माइनस अंडर 25 माइनस 9 16/25, ए की बन गया इंटू 9/25। 25 माइनस 16 कितना आ गया 9। कैलकुलेशन तुम हूँ प्लस 2 च हो गए हो, मैं मान के चलूँगा भी कैलकुलेशन तुहानू आती है। आ गया ये अगे सॉल्व करियो कोज इनवर्स 12/25, अच्छा 16 का अंडर 4, 25 का 5, 9 का 3 तो यह भी 5। या तुम ध्यान देखो यह बन गया कोज इनवर्स 12/25 माइनस 12/25, यह बन गया कोज इनवर्स 0। उन्हें यह नहीं लिखा कोज इनवर्स 0, उन्हें की लिखते थे बुक पेपर इदा नहीं पाएगा, वो सॉरी सामने इदा नहीं पाएगा, उन्हें यह क्या है क्योंकि कोज इनवर्स 0 अगे सॉल्व हो जाता है, इस करके उन्हें की पाता कोज इनवर्स 0 कितना होता है π/2। तो यह देखो की होगी राइट हैंड साइड। देखो सम नंबर हो गया 24। तुम अपनी एक्सरसाइज चैक करो, तुहानू यही 5-6 चीज़ां लभनियां किहड़ियां, टैन इनवर्स वाले जिहड़े आपां कल तक वीडियो की लास्ट वीडियो तक, है ना, तो जां फिर साइन इनवर्स ते कोज इनवर्स। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ चीज़ होर आनी है, देख लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ चीज़ होर आनी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ काफ़ी सम है, ਤੁਸੀਂ देखना अपनी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं 1-2 कराने की कोशिश करना, और मेन भी है जिदा मेरी बुक च 26 सम है, तुसी अपनी बुक च देख लेना। कोज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। हुण यह सम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो जाता है। यह सम बहुत सारे तरीकों से सॉल्व हो जाता है, मैं तुहानू इक्को तरीके नाल करवाना, देखो ध्यान नाल। इधर की देता कोज इनवर्स, इधर की देता साइन इनवर्स प्लस च, तो यह की आ गया नाल राइट हैंड साइड से साइन इनवर्स। इनू किद्दां सॉल्व करिए, क्योंकि हजे तक आप जिन्ने भी फार्मूले पढ़े हैं वो किहड़े पढ़े हैं, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, या टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, या कोज इनवर्स एक्स माइनस कोज इनवर्स वाई, है ना, या दोनों साइन इनवर्स होन, या दोनों कोज इनवर्स होन, या दोनों टैन इनवर्स होन। पर एक ही आ गया, एक कोज इनवर्स आ गया तो एक साइन इनवर्स आ गया, पहली गल। दूजा राइट हैंड साइड पर भी देता ने साइन इनवर्स। तुसी की करना है यहो जे सम दे विच, हुण किहड़ा फार्मूला लगाए, कोई मिक्स वाला फार्मूला तो पढ़िया नहीं आपां,
अं की करना है, अं राइट हैंड साइड से देखना साढ़े को की है साइन इनवर्स, ਇਹਦਾ मतलब लैफ्ट हैंड साइड से ਕਿਹੜਾ फार्मूला लगाना है साइन इनवर्स वाला। देखो इनू सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2-3 मैथड ਨਾਲ सॉल्व हो जाता है, पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮ 'ਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜੇ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ tan ਇਨਵਰਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ साइन ਇਨਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ साइन ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ साइन ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ साइन ਇਨਵਰਸ x + साइन ਇਨਵਰਸ y, ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ x + ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ y। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ साइन ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ x + ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੋਸ ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ साइन इनवर्स। इस करके सानू पहले देखना पेगा कि आप किहड़ी चीज़ नूं चेंज करिए। अं की करना है, फिर इनू कित लेना है साइन इनवर्स, पहला इनू कित लेना है साइन इनवर्स ते उस तो बाद साइन इनवर्स च लैके जान तो बाद फिर आपां ने इनू सॉल्व करना। हुण इनू साइन इनवर्स च किद्दां लैके जाइए, तुसीं हर इनू की करियो जिद्दां आपां ट्रिग्नोमैट्री च करदे ही, 9th 10th च कीता ही, +1 च भी कीता ही, 10th च भी याद रखियो। अगर सानू एक दी वैल्यू गिवन हुंदी, सानू एक दी वैल्यू गिवन हुंदी, आपां सारे ही कढ लैंदे ही कि साइन गिवन है, कोस भी कड्डो, टैन भी कड्डो, सीकेंड कोसीकेंड सारे बाकी 5 दे 5 कढ दिंदे ही। किद्दां पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। अगर एक सानू गिवन हुंदा ही, कहंदा पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल ते सोना चांदी तोल, साडे को एक हुंदा ही ते आपां सारे कढ लैंदे ही किद्दां पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। कीते ही आपां 10th च, +1 च भी कीते ही, 10th च भी कीते ही। उदां ही तुसीं की करना है कोस इनवर्स, अगर कोस इनवर्स गिवन है ते इहनूं आपां जिहदे च मर्जी चेंज कर सकदे हां। जे साइन इनवर्स चाहिदा ते साइन इनवर्स च चेंज कर दिओ, जे टैन इनवर्स च चाहिदा ते टैन इनवर्स च चेंज कर दिओ, जे सीकेंड इनवर्स कोसीकेंड इनवर्स कोट इनवर्स ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਵਰਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मतलब चेंज कर सकते हैं या वैल्यू कर सकते हैं। अगर सानू एक कोस इनवर्स की वैल्यू पता है, किसी भी इनवर्स फंक्शन की एक दी वैल्यू पता है, तो बाकी आप 5 दे 5 इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, चाहे जिहड़ा मर्जी हो। पर ये सानू जिहड़ी लोड़ होएगी आप उही करना, बाकी सारे नहीं करते। जिदा ट्रिग्नोमैट्री के 10th के आप करते ही एक ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन गिवन होंदा ही, जिद्दां मैं हुणे लिखिआ एक गिवन होंदा ही, तो आप बाकी सारे ही कढ दिंदे ही, पाइथागोरस थ्योरम लगा के कढदे ही ना। उदां ही अगर साडे कोल एक इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक है ना, इसकी वैल्यू पता सानू कोस इनवर्स कितना है 12/30, इसका मतलब इस मैं साइन इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकना, टैन इनवर्स की भी निकाल सकना, कोट इनवर्स की भी, कोसीकेंड इनवर्स की भी, तो सीकेंड इनवर्स की भी निकाल सकना। हुण देखियो किद्दां करनी है ना। तो यह सारी चीज़ तुसीं जदों भी इदां दे सम होणगे सारे च अप्लाई करके देखियो। मैं नैक्सट वीडियो के विच तुहानूं 1-2 सम करावांगा इदां दे, ते आपां नैक्सट वीडियो दा चैप्टर खत्म कर देंगे। हुण ये देखो चेंज किद्दां हुंदी है। तुसीं की करना है, अपने कोलों पहला फार्मूला लगाना, लैफ्ट हैंड साइड नहीं लैनी, पहला इनू साइन इनवर्स लो, जिन्हों चेंज करना है। लैट कोस इनवर्स 12/30, सानू पता है भी इनवर्स फंक्शन सॉल्व करके की आंदा है एंगल। आप पहला स्टार्टिंग जही पढ़िया ही, इनवर्स फंक्शन सॉल्व करके की बनता है एंगल। तो तुसी इनू की मान लेना है थीटा, जे नहीं थीटा मानना एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, थीटा मानना थीटा या एक्स। ए कोस इनवर्स इधर जाके की बन गया कोस थीटा। ए कोस इनवर्स फंक्शन च हुंदा इदां, जिन्होंने पहले लैक्चर नहीं लाए थे जून क्लासिस वो देखना कि ए कोस इनवर्स इधर जाके की बन जाता है कोस थीटा। कोई भी इनवर्स हो,
जे साइन इनवर्स है तो इधर जाके साइन, जे टैन इनवर्स है तो इधर जाके टैन, जे कोज है तो कोज इनवर्स है तो कोज, कोट इनवर्स है तो कोट, है ना सारे। अच्छा तुम ये विचों दी कोस थीटा बन गया, लगाओ फिर वही पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तो, है ना। कोस ट्राइग्राम बनाओ, एंगल कितना आ गया थीटा, कोस के देख लो बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, दसने भी कोस इनवर्स तो आप सारिया वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसिकन, सीकन, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स। तो सानू चाहिए कि साइन इनवर्स, इस करके मैं कल साइन इनवर्स ही करनी है। कि करनी है एक तो साइन इनवर्स, या कोई भी और पूछा होगा जी मर्जी इनवर्स फंक्शन तो दूसरा इनवर्स फंक्शन कि करना, उन्होंने थीटा मान लियो, थीटा मान के उन्होंने किस लै दियो ट्रिग्नोमैट्री, ट्रिग्नोमैट्री च लैके फिर उदा ही हूँ आप साइन इनवर्स ही करनी है ना। पहले ऐ कड्डो परपेंडिकुलर, मैं सीधा लिख देना, तुम थ्योरम लगा दियो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 169 माइनस 144 25 तो है आने तुहाडे को 5। ठीक है जी, करके देख लो सॉल्व, यही बन जाए। कोस थीटा आ गया, आप साइन इनवर्स करना है, आप साइन इनवर्स करना, तुम इतों भी कड्डो साइन थीटा। जो तुम साइन थीटा कड्डोगे साइन इनवर्स अपने आप ही जो इनवर्स निकालना है, अगर साइन इनवर्स निकालना तो साइन थीटा कर लो, जो टैन इनवर्स निकालना होंगे तो टैन थीटा निकाल लेना है, जो कोट इनवर्स कराया तो कोट थीटा निकाल, जो इनवर्स क्या होगा वह ट्रिग्नोमेट्री निकालना, जो इनवर्स क्या होगा वो ट्रिग्नोमेट्री। साइन के देख होंगे ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 5 तो हाइपोटेन्यूज कितना है 13, आ गया साइन थीटा। हूँ जिदा इधरों है ए साइन इधर जाके की बन जाना है, हमें थोड़ा इधर देखना, ए साइन इधर जाके की बन जाना है, थोड़ा इधर निकाल लो सामने भी फिर सॉल्व नहीं होना, तो सामने सॉल्व करना नहीं, फिर ए साइन इधर जाके की बन जाना है साइन इनवर्स, साइन इधर जाके की बन गया साइन इनवर्स। कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 लिख दो, है ना, ऐदा लिख लो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ना। साइन थीटा कितना आ गया 5/13 तो ए थीटा, थीटा ए साइन उधर जाके साइन इनवर्स 5/13। ए क्लियर, देखो ए भी थीटा ही, कोस इनवर्स ए भी थीटा ही, ए भी थीटा है, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, ए भी थीटा, कोस इनवर्स इज इक्वल टू थीटा तो ए साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ दोनों की वैल्यू भी होएगी सेम होगी। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ कोस इनवर्स ਨੂੰ ਕਿਹ ਲੈ ਗਏ साइन इनवर्स। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ tan इनवर्स ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ tan थीटा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, tan थीटा ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, फिर उतों tan इनवर्स। ਇਹ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, बहुत समझ आने आती है ना, मैं नैक्सट वीडियो में सम करावांगा तुहानू। ਇਹਦਾ मतलब साढ़े को cos इनवर्स 12/13 किहदे इक्वल हो गया sin इनवर्स 5/13। है भी थीटा है भी थीटा, नहीं तो इतना पा लो नंबर 1 एंड नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2, है ना, ऐसे लिख लो, नहीं वैसे लिखने की लोड़ नहीं की, फ्रॉम 1 एंड 2 वो भी थीटा है भी थीटा, इसका मतलब cos इनवर्स 12/13 के इक्वल आ गया sin इनवर्स 5/13, sin इनवर्स 5/13। अगेन ये लेफ्ट हैंड साइड, लो लेफ्ट हैंड साइड sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5, sin इनवर्स 5/13 प्लस sin इनवर्स 3/5। करो सॉल्व, लगाओ फार्मूला, हम दोनों sin इनवर्स हो गए ना, लगाओ फिर फार्मूला जो पिछले लगाया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की होंदा ही sin इनवर्स x अंडर 1 माइनस y स्क्वायर, y आ गया प्लस y अंडर 1 माइनस x स्क्वायर 25/169। थोड़ा इधर करके लिख लेना, साइन इनवर्स 5/13, फिर एलसीएम लो 25 25 - 9 16
4/5 3/5 169 माइनस ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ 12/30 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin ਇਨਵਰਸ 20/65 ਤੇ 36/65 सेम है प्लस करो ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ 56/65 मैं ऊपर लिख देना मतलब ਇਹ ਉਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ठीक है जी ਇਹ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ sin इनवर्स 56/65 which is equal to right hand side आ गया ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ